नमस्कार सबको एंड वार्म वेलकम। ऑब्वियसली हम लोग सब यहाँ ट्रेलर देखने आए हैं। आई होप सबका इमोशन भी अच्छा ही है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि इस फिल्म में मैं 3 ऐसे इतने बड़े एक्टरों के साथ काम किया है, बहुत मज़ा आया। एंड सो आई विल कॉल देम। फर्स्ट आई विल कॉल one of my very good friend and one of the finest actors, Mr. Irfan Khan. So before we get in, would you like to tell us a little bit before we see the trailer? A little bit for our audiences. नहीं, I think the trailer उसमें ही सब कुछ दिख जाएगा आपको। आपने पहले ही बोल दिया, इट्स कोई फैमिली ड्रामा। इसमें पीकू की दुनिया देखने को मिलेगी आपको। So I think the trailer will speak for itself. I will also request Piku's producers, Mr. N.P. Singh, Mr. Ronnie Lahiri, Miss Sneha Rujani to please join us on stage along with the writer of the film, Juhi Chaturvedi. Can I please have all of you all on stage, please? Ladies and gentlemen, a big round of applause. All right, before we open the questions, the media ask questions. Amit sir, I would like to ask you a very, very important question. So the baritone never comes only. So originality की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो आपकी तरह baritone आता ही नहीं है. नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. सफल हो गया सर मैं. I'm going to tell my mom this. All right, sir, but on a very, very serious note, this seems like yet another performance of a lifetime. What made you do this film, sir? So, सब बाकी लोग हैं, उनसे पूछिए पहले. No, Shujit and me have been together for a very long time. बहुत सारे कैंपेन्स हमने साथ में किए और तब शुजीत एक फिल्म बनाना चाह रहे थे. उन्होंने मेरे साथ एक फिल्म बनाई जो कि बन के तैयार बैठी हुई है, अभी तक रिलीज़ नहीं हुई. उसकी एक अलग कहानी है. फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ये फिल्म करनी है और इसीलिए हम साथ में आ गए. और जब दीपिका हो, इरफान हो और सोनी साथ में हो तो मैं तो एकदम मंत्रमुग्ध हो गया. Thank you very much, sir. Sujita, I would like to ask you, after sperm donation and wiki donor, seems like we have constipation in Piku. I mean, motion से ही emotion. ये क्या है? हेलो चेक. आई थिंक ये तो सच्चाई है कि नहीं, हम सबके लिए एवरी मॉर्निंग. सो तो हाँ, इट्स नॉट ए फिल्म ऑन अबाउट कॉन्स्टिपेशन, बट हाँ, इस सब्जेक्ट को इस फिल्म में काफ़ी डिस्कस किया गया है. सो आई थिंक वही आपको देखने को मिलेगा. एंड या दैट्स इट. थैंक यू सर. दीपिका, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे. पीकू सीम्स टू बी अ लॉट इन ट्रबल विद हर बाबाज बाउल मूवमेंट्स इन द, जब हमने ट्रेलर में देखा है. सो हाउ डिड इट feel like playing this character, the girl next door over here? I think the first time Shujit came and met me for this film, I remember saying yes to the film just based on one scene. He narrated one scene to me and I said, that's it, I'm on. I think for me, being Piku is a character that's very, very, very relatable. Piku as a character. And then of course there's the situations
within the film that you'll see that I think every one of us will identify with, especially for girls who are working, you know, who also have parents. You know, you want to take care of them. I think women generally are born to multitask. I've said this earlier as well. So I think all the women will find it very, very relatable from Piku's point of view. Thank you so much. इरफान सर आपसे एक सवाल है. All sympathies to you, sir. जब हम देख रहे हैं, I'm sure all of us feel the same out here. But can you tell us, आप बता सकते हैं कि ये father daughter की जो ये जोड़ी है कितनी crazy है? आई थिंक जितनी आपको दिख रही है उससे कहीं ज़्यादा है. इससे ट्रेलर से उतना अंदाज़ा नहीं होगा आपको. एंड पिक्चर के लिए इन्होंने बहुत कुछ बचा के रखा है. और मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन दोनों के बीच में फंसा. तो मेरा भी जर्नी इंटरेस्टिंग हो गया. Thank you very much, sir. Can I please pass on the mic to Hussein? So, my question to you is, you know, what made you pick this film, and also Sony's association and relationship with Mr. Bachchan? If you could just put some light on that. Our association goes back many years now. After many seasons of successful seasons of Kaun Banega Crorepati, the professional and emotional bond with Mr. Bachchan has strengthened every day, every year. And we are just taking this forward through this film. And when a project like this is presented to you, you can't say no. You have the best of directors. You have stalwarts like Mr. Bachchan, Irfan, Deepika. Such a beautiful story. How can you say no to a project like this? That's how I looked at it. Absolutely, absolutely. Ladies and gentlemen, a big round of applause to the director, to the producers, and yes, of course, the star cast. आई थिंक ये नाम जो है, ये बहुत ही एक टैलेंटेड राइटर मेरे राइट में बैठी हैं, जूही चतुर्वेदी. ये उन्हीं का लिखा हुआ फिल्म है. ये आइडिया भी उन्हीं के दिमाग से आया था. सो आई थिंक ये उन्हीं ने ये नाम दिया था, एंड आई रियली लाइक्ड इट, एंड सो दैट्स व्हाई नाम पीकू. दीपिका, आपसे जानना चाहता कि इतनी सारी फिल्मों का प्रमोशंस आज तक हम लोगों ने देखा है, इतने सारे इनवाइट्स हमें आते हैं डे टू डे कि आप आइए, ट्रेलर लॉन्च है, लेकिन आपकी फिल्म का जो इनवाइट आया वो वाकई में अद्भुत था. एक वीडियो आया, मैसेज आया और उसने बताया कि फैमिली के साथ आइए. तो ये आइडिया किसका था पूरी तरीके से फिल्म प्रमोशंस का? क्योंकि कई जगह ऐसा आ रहा है कि आपका ये आइडिया था इस फिल्म को प्रमोशंस में. I think somewhere we have all contributed in whatever way possible. I think it stems from the idea of the fact that the film itself is a very, very personal journey, you know, of Piku and Baba, and even in the moments that you see between the characters, I think it's more than the story, it's really about the characters. So even in terms of our communication, I think we've tried to keep it as intimate and as personal as possible. And this was one of the ideas that we came up with, and we hope all of you liked it. दीपिका एंड अमित जी, आपके लिए सवाल है. आप दोनों की केमिस्ट्री हमने ऑन स्क्रीन तो देखी, बट इन रियल अगर हम बात करें, हाउ इज़ योर रिलेशन विथ योर डैड? एंड अमित सर, आपका रिलेशन कैसा है विथ योर डॉटर? जी बहुत अच्छा है. और फिल्म के दौरान ऐसा लगा कि जिस दिन हम सब की शूटिंग ख़त्म हो गई, ऐसा लगा कि ये परिवार जो है वो बिखर गया है. और बड़ा दुख हुआ हम सबको, कष्ट हुआ कि अरे अचानक हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे. इस तरह का एक वातावरण बनता है हमारे सेट पे, और इस तरह का एक एटमॉस्फेयर रहा. ये आपको बता सकता है कि कितने नज़दीक हैं हम सब एक दूसरे के. जी मैम, इस स्टोरी का आइडिया मतलब कैसे जहन में आया, और ऐसे अतरंगी किरदार आपके आसपास भी रहे हैं क्या? कैसे आइडिया आया, ये कहाँ से आया, ये तो नहीं मालूम सच में. जहाँ से सारे आइडियाज़ आते हैं सबके, वो अच्छे अच्छे वहीं से आया होगा. लेकिन ऐसे कैरेक्टर्स सच में हैं, मेरे आसपास हैं, कुछ शुजीत के आसपास हैं, कुछ रॉनी के आसपास हैं. तो यू नो व्हेन द आइडिया केम, उसके बाद दिस डिस्कशन, डेवलपमेंट ऑफ दीज कैरेक्टर्स, ऐसे एक बाबा, उनकी एक ऐसी लड़की, हमने आपने कई लोगों ने ऐसा देखा है कि there is a girl who is taking care of her father or mother. So, you know, one knows these characters somewhere from my own mind, somewhere borrowing from, you know, brainstorming sessions that we had together. Ultimately, ऐसे अतरंगी character बन गए, and I like little humor in life. तो कुछ भी problem हो, constipation भी हो, तभी. Deepika, this is the first time you would be playing a Bengali girl in the movie. What preparations did you make for the character? Was there anything specific you had to do? I think when you're doing a film like Piku and Shujit Sarkar is your director,
There's no escaping anything to do with Bengali. He's just I think for me that was my biggest learning, you know, to be surrounded by Bengalis. Juhi herself is not, but she's grown up. I remember chatting once. Huh? Yeah, I remember chatting once with her and asking her how come there was all, you know, this influence in the film. Having said that, Piku is still today's girl. You know, there is that influence of being a Bengali and of Calcutta, and having grown up there. Piku's grown up in Calcutta. But she's lived most of her life in Delhi. So I think it's just that little influence. And then you have a director who's, you know, he is a Bengali himself. So I think he was my teacher cum director. And Deepika, my question is for you. You've worked with Abhishek and with Amit ji. So who was a better co-star and why? ये परिवार में आप लाज रख लेना बेटी, बाबा की लाज रख लेना प्लीज. Okay, let's put it this way. I think Abhishek's more. Actually, I can't even say that because he has an amazing sense of humor. What I was going to say is that Abhishek's more fun to work with, but I got to learn a lot from Amit ji. But the reverse can happen also. I think they're just too talented, father and son both. But I have to add to that and say that in the years that I've known Amit ji, outside of work, you know, whenever we've met socially or they've called me over for Diwali or whatever, I think our chemistry just came to us very, very naturally. You know, I remember them mentioning once that I remind them of their daughter. And the way they have been protective of me is the way my parents are with me. You know, I think a lot has to do with your upbringing and things like that. So I think our chemistry that you will see in the film eventually is very, very organic. सवाल मेरा है कि पीकू बनने के बाद असल ज़िंदगी में कोई आपकी तब्दीलियाँ आई हैं माता पिता के साथ, उनके ज़्यादा केयरिंग में या कुछ इस फिल्म करने के बाद? I would actually say it's the other way around. I think a lot of Deepika has gone into Piku because I started working at a very young age and moved away from family to pursue my career and lived in Bombay now for the last 6-7 years. So I think automatically वो एक concern तो होता ही है, you know, how are my parents doing health wise, otherwise, are they happy, are they okay? That concern is always there. Also, Piku as a multitasker, the kind of things that Piku does, when you see the film, you'll see it. You know, parents, work, family, friends, all of that, but still doing it happily. She's not forced to do it. She does it very, very happily and she enjoys doing it. I'm very much like that as a person. But yes, of course, there are moments in the film when we were shooting, you know, I'm sure we've all had our moments where we've thought of our own parents at some point. अमित जी, दिल्ली से कोलकाता तक का सफ़र है, तो कभी ऐसा रोड ट्रिप आपने किया है, कोई जहन में आता है अगर आप जिक्र करना चाहें? रोड ट्रिप मेरा व्यक्तिगत जी कई बार, अभी बताना पड़ेगा. सब बहुत से ऐसे वाक़या हैं, क्या बताएं आपको. लेकिन हाँ, कई बार अपने परिवार के साथ दिल्ली से पंजाब, क्योंकि हमारा वहाँ संबंध है, अन्य जगहों में आगरा हो, मथुरा हो, लखनऊ हो, इलाहाबाद हो. जब बाबूजी का तबादला हुआ इलाहाबाद से दिल्ली, तब उस समय हम इलाहाबाद से दिल्ली गाड़ी में आए थे. तो वो एक सफ़र हमें बहुत याद है. पहले विक्की डोनर, फिर मद्रास कैफ़े और अब पीकू. क्या आप अपनी फिल्मों को किसी दायरे में नहीं बांधना चाहते? वेरी डिफ़िकल्ट, मालूम नहीं किस जॉनर में मैं जाके सेटल होऊंगा या क्या करना चाहता हूँ. कहीं आइडिया आता है अच्छा तो करना, मीन्स सडनली लगता है हाँ ये आइडिया में फ़िल्म बन सकती है. बट एक फ़िल्म एक तरह का एक विज़न होता है जो आपको देखना चाहिए. सपोज़ जैसे जूही ने जब मेरे को आइडिया सुनाया तो पता नहीं कहीं एक कुछ टिक कर गया, लगा कि नहीं एक फ़िल्म बन सकती है इस पर. बहुत ही डिफ़िकल्ट था इस फिल्म को लिखना. इस फिल्म को लिखना उतना आसान नहीं था बिकॉज जस्ट प्योरली कैरेक्टर बेस्ड फिल्म है और हमारी ज़िंदगी के कुछ रिफ्लेक्शंस हैं. एक दिल्ली का परिवार है ये. सो मालूम नहीं किस जॉनर पे कहाँ मैं बांधूंगा अपने आप को, बट आई थिंक
बट एक्सपेरिमेंट करता रहूँगा, तभी ताकि मज़ा आएगा। इरफान, कैसा था एक्सपीरियंस, क्योंकि जब अमिताभ बच्चन जैसे महानायक आपके संग एक फ्रेम शेयर कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हर आर्टिस्ट हल्का सा नर्वस होता है। आपका एक्सपीरियंस कैसा था बच्चन साहब के संग काम करने का, और क्या फीलिंग थी उस समय? यार महानायक की निशानी यही है कि वो अपनी महानता को आने नहीं देते को एक्टर्स के सामने। आई थिंक मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था, और जो मैंने उनको देखा काम करते हुए, मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर को अपनी अगर ट्रेनिंग अगर वो कर रहा है या वो सोच रहा है कि एक्टर बनना है उसे, तो आई थिंक उनको बच्चन साहब को ऑब्जर्व करना कंपलसरी है, नहीं तो एक्टर नहीं बन सकता। मतलब उसको वो पता नहीं चलेगा कि वो किस तरह से करते हैं। वो मुझे लगता है कि अभी तक बच्चन साहब के जो रूप हैं वो उनको खुद को भी नहीं पता चले हैं, शायद उतना एक्सप्लोर नहीं हुआ है। वो जिस ओबीडियंट तरीके से, जितनी मासूमियत के साथ डायरेक्टर के विजन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं और साथ में प्लेफुल रहते हैं। कई बार क्या होता है ना कि आदमी मेहनत करता हुआ बहुत बोरिंग लगता है, दूसरे लोगों के लिए बोरिंग हो जाता है, लेकिन उनके साथ मतलब बहुत सारा उनका मतलब उससे प्लेफुलनेस बहुत होता है। कई बार ऐसा हुआ जो मेरी ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगा वो मोमेंट, कि हम लोग ऐसा वो लाइन बोलते हैं कई बार ना, अपनी लाइन रिहर्स करते रहते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो आप दूर बैठे हो तो कई बार आपको भी वो होता है, इंस्टिंक्ट आ जाता है, तो आप यहाँ से बोलने लगते हो, फिर वहाँ से जवाब देने लगते हैं, फिर आप बोलने लगते हो। तो ऐसा कई बार हुआ कि हम अपने बाल ठीक कर रहे हैं, वो उधर अपना काम कर रहे हैं, लाइनें बोल रहे हैं, यहाँ लाइनें कर रहे हैं, बोलते बोलते वो पास में आ गए, हम दोनों सीन करने लगे, दीपिका भी वहाँ बैठी, फिर वो देने लग गई क्यों। तो वो एटमॉस्फेयर मेरे लिए बहुत ही मैजिकल था और बहुत इंस्पिरेशनल था, फैंटास्टिक एक्सपीरियंस for both with whole team, it was an outstanding experience। and बच्चन साहब ने जो कहा कि ये फिल्म ख़त्म होने के बाद I was emotional, हमें लगा कि यार ये हफ्ते भर में शूटिंग कैसे ख़त्म हुई पूरी फिल्म की, and we were all feeling कि ये बहुत कभी ना शेष हुए। बच्चन साहब, गुड इवनिंग। मेरा सवाल आपसे है और इरफान दोनों से है कि दीपिका को देखा कि बहुत पैम्पर कर रही हैं, बहुत इरिटेट कर रही हैं आपको लगता है कि रियल लाइफ में जब दीपिका की शादी होगी तो कितनी अच्छी बहू साबित होंगी अपने ससुराल वालों के लिए? और एज वेल इरफान, आपसे भी यही सवाल है कि कितनी अच्छी वाइफ साबित होंगी ये? मैं पता करके बताऊंगा। भाई साहब, एक बात आपसे पूछूंगा, आपका ब्याह हो गया है? हाँ जी, होने वाला है? जहाँ होने वाला हमसे पूछ लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको क्या होता है, बीवी बेटी ये सब। मैं ये बोल सकता हूँ कि बेटी तो आई थिंक शी इज द फादर वुड बी प्राउड फादर, इवन द कैरेक्टर चाहे कितने भी क्रेजी हों, लेकिन व्हेन यू विल वॉच द फिल्म आपको लगेगा कि इट्स एन ऑनर और इट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव दिस काइंड ऑफ डॉटर, एंड आई थिंक हर फादर आल्सो मस्ट बी हैविंग द सेम फीलिंग। और जैसे कि मूवी के बारे में है कि इमोशन से इमोशन तक, तो 3 अच्छा सा मोशन आने के लिए टिप्स दे सकती हैं अगर आप सबको। I told you this was going to happen. Next she's going to ask me my motion का schedule. टिप्स फॉर गुड मोशन, मतलब सबका इमोशन अच्छा रहे, दिन अच्छा निकले। Piece of goal. It's all in the movie. It's all in the movie. सर इस सब गोल से तो रुक भी जाता है कितनी बार। काफी तजुर्बेदार लग रहे हैं आप। यस सर। आई थिंक सफर कर रही हैं शायद वो। ये किसी इरादे से हमने नहीं बनाई है, लेकिन अगर ये भावना अगर बच्चों में जाती है और दर्शकों में जाती है तो हम इससे बहुत प्रसन्न होंगे। या मुझे लगता है उन्होंने बोला है कि अगर इस भावना से, तो फिल्म के पीछे कुछ फिलोसॉफीज़ होती हैं, बट हम ज्ञान देना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप आएँ और मज़ा लें। तो अगर उसमें से कुछ आपको ज्ञान दिख जाता है तो आप लेके जाइए। Deepika, Shujit, Mr. Bachchan and Irfan, right here. Hi. So the film, majorly highlights a Bengali family, a father and daughter, and also the Bengalis are very keen and very enthusiastic towards sports. And tomorrow we have the semi-finals of India and Australia. So what are you guys doing exactly? Like, are you guys excited for the match? What plans? How do you plan to watch the match? How do you feel India has been performing till now? इस प्रश्न का उत्तर मोशन के साथ जुड़ा नहीं है। सर बिल्कुल मोशन और इमोशन से साथ भी जुड़ा ये हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जानबूझ करके आज रखी ताकि कल हम एकदम फ्री रहें उसे देखने के लिए अपने मैच में। इरफान जी, Deepika, could you please
also add on something for Team India. Whatever Baba says. Irfan. If क्या सवाल क्या था आपका? How do you feel as Team India? नहीं नहीं, क्या मैं एक चीज़ बता, मुझे पता नहीं मैच का, मैं बता सकता हूँ बंगाली फैमिली की कहानी है और यूपी की फैमिली की भी कहानी है और मैंने एक लाइन बोली है इस फिल्म में कि दुनिया में 2 ही स्पीशीज़ होती हैं, प्रजातियाँ होती हैं, एक बंगाली और एक नॉन बंगाली। सो मैं चौधरी हूँ लेकिन बंगाली चौधरी नहीं हूँ फिल्म में। सो यू नो, First of all, congratulations for your Haider, शुक्रिया। as you are part of जी, your team. मैं ये पूछना चाहती हूँ कि how was the experience with Kolkata and Deepika? Excellent, outstanding. It was. I felt like, you know, I've been Kolkata for many times, but this is the first time I discovered some aspects of Kolkata, which will, you know, stay in my memory till I live. It's beautiful, you know. The main thing, the beautiful thing about Kolkata is Kolkata retains the ruralness. You know, जो बाहर के लोग आते हैं वहाँ और जो रहते हैं छोटे छोटे गाँवों से, वो उसको रिटेन करता है, वो शहर उसको डिस्टॉर्ट नहीं कर देता। सो बहुत भोलापन है लोगों में। मैंने क्राउड को इतना ज़्यादा खुश होके किसी को देखते हुए नहीं देखा। पता नहीं क्यों इतने खुश रहते थे वो, सारे इतनी भीड़ खड़ी हुई है, सब खुश। आई डोंट नो कहाँ से वो खुशी आ रही थी उनकी। And there were some beautiful, you know, experiences, and I'll remember all my life. It was fantastic. आपसे सवाल है, आप अपने शुरुआती दिनों में कोलकाता में रहे, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ कि उसको आपने इम्प्लीमेंट किया हो शूटिंग के दौरान। जी, मेरी पहली नौकरी जो थी वो मैंने कलकत्ते में की और 8 साल में वहाँ रहा और आता जाता रहता हूँ। वो वातावरण जो है वो कभी भूलता नहीं है। तो चाहे वो भाषा हो, चाहे वो वहाँ का वातावरण हो, जैसा कि अभी इरफान कह रहे थे, जब कभी भी मैं तो अपने जितने भी सह कलाकार हैं उनसे यही कहता हूँ कि जब कभी भी आप थोड़ा सा अपने आप को डिप्रेस फील कर रहे हो, कलकत्ता जाइए। वहाँ की जनता जो है वो इतनी पैशनेट है कि वो आपको एकदम जागृत कर देगी। तो जितने भी साल मैंने वहाँ गुजारे और जो कुछ भी मुझे वहाँ ज्ञान हुआ, वो सब कुछ थोड़ा बहुत उसका अंश जो है वो आप शायद फिल्म में देखेंगे। और क्या कहें, कोई भी एक पुरानी जगह जहाँ आप रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, वहाँ पर वापस जाना बड़ा अच्छा लगता है। हमेशा पुरानी यादें सब ताज़ा हो जाती हैं। और जब भी मैं कलकत्ता जाता हूँ, क्योंकि हमने 8 साल वहाँ गुजारे, इसलिए जितने भी जगहों पर मैं रहा, जहाँ मैंने काम किया, जिन लोगों से मैं मिलता था, जो मेरे साथ काम करते थे, मेरे जो बॉस थे, उन सब के घर में अभी भी जाता हूँ, उनसे मुलाकात करता हूँ, उनको अपने यहाँ बुलाता हूँ। बड़ा अच्छा वातावरण रहता है। मैं वहाँ का जमाई बाबू हूँ, जैसा कि आपको पता होगा अगर आप बंगाली हैं, और मेरी अर्धांगिनी जो है वो बंगाली है, तो ये रिश्ता तो टूट ही नहीं सकता। देखिए पीकू, आप जैसी एक लड़की हैं जो फिल्म में होते हैं, जैसे इस कॉस्मोपॉलिटन सिटी बॉम्बे में, मुंबई में जैसे आप हैं, काम कर रही हैं आप यहाँ पे, आपके घर पे शायद पेरेंट्स होंगे, लेकिन आपका मन इधर है। इनकेस आपका शायद कहीं ना कहीं आप पेरेंट्स के बारे में सोच रहे होंगे, किसी के बारे में, शायद इस शहर में भी नहीं हो। सो ये हर एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी में किसी भी काम करने वाली जो लड़के या लड़की हों, उनके साथ रिलेटेबल है। सो आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल ज़िंदगी के जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ये फिल्म वही डील करेंगी। स्पेशली एक कॉस्मोपॉलिटन शहर में एक वर्किंग गर्ल के साथ क्या होता है। सो दिस फिल्म डील्स विद दैट कैरेक्टर एंड पीकू इज़ दैट। देखिए मैं आपको क्विकली बोल देता हूँ, आप शायद वो बिंदी के बारे में पूछ रहे हैं। पोस्टर में जो बिंदी आया है, बिंदी का मतलब जो है वो शक्ति होता है। सो वो हमने सोचा है कि शक्ति को उस बिंदी के साथ करें। तीसरा जो नेत्र है यहाँ पर होता है, इसलिए उसको हम उसका अभिषेक करते हैं। They will now. I don't think any of us have shared it with anyone else. Now that we've launched it, as soon as we leave from here, we're going to share it with everybody. Yeah, I think it's not just with me and my father, but I think every daughter and father will relate to what Piku and Baba go through, because they're very, very relatable characters, very relatable situations, and it's what all of us go through in our lives at some point. You know, right from growing up to working to taking care of your parents, and like I said, women at the end of the day, all of you here today are working women, you know, but we also multitask. We have to take care of our homes, we take care of our parents,
we still have a social life. You know, you want to go out with your friends, like you were asking. You want that little time to yourself also, where you have that little moment in the morning, maybe after your shower, you're getting ready, just to see if you're looking presentable or not. Every woman wants to look good. So there's all these elements that we've sort of captured, you know. So I think it's not just between me and my dad, but I think every girl will relate to all these characters. इस ट्रेलर के अपार्ट में लेकिन एक फिल्म जब बनती है, आदमी है, एक फिल्म जब बनती है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कई सारी एक स्टोरीज भी जुड़ी होती हैं. स्नेहा और सुजीत, आपसे जानना चाहूँगा, इन तीनों स्टार्स में सबसे ज़्यादा डर आप लोग किससे लगता था हैंडल करने में, कि अब इनको वैनिटी का दरवाज़ा खटखटाया जाए, बुलाया जाए, सेट पे बुलाया जाए, तो सबसे ज़्यादा डर किसका था सेट के ऊपर? ऐसा कुछ नहीं था, आई डोंट थिंक सो. हमने बहुत मज़े से काम किया. हमारे सेट में सबसे मज़ेदार यही होता है कि हमारे सेट का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, और आई थिंक एक एक्टर को वही चाहिए होता है कि जब वो सेट पे आए तो उसको मज़ा आना चाहिए. तो आई थिंक उसको एक फ्रीडम मिलना चाहिए एक्टिंग करने के लिए. सब एक्टर को, वर्ल्ड के सब एक्टर को यही चाहिए होता है कि एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट. हम लोग वही रखते थे. वैनिटी के दरवाजे तोड़ दिए थे इस फिल्म में. We never went only to the vanity. We just keep hanging on set. चिक डली हुई थी उसमें. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you for making it here this evening. We are really proud and happy to be associated with this charming film, Piku. We've launched a line under the brand Melange, which has received overwhelming response in our stores. We really wish the film Piku all the very best, and we're sure it'll do very, very well. Thank you. Deepika, may I request you to say a few words about your association with the brand? Good evening, everyone. I want to thank Lifestyle Melange for associating with us. Piku's look in the film is sort of functional yet stylish. You know, she's a working girl, so it obviously has to be comfortable. And I think it's all the qualities that Melange as a brand stands for is what Piku also is. I mean, that's the way she also dresses. It's functional, it's fashionable, you know, you're comfortable at the same time. And most importantly, I think it represents every Indian woman, someone who's modern and confident, but very, very traditional at the same time. So thank you so much for this association, and thank you for your wishes. And we also hope that Piku does really well. What she said about Piku's character is not the full story. There's so much left. Yeah, for that you have to see the film. And brand के बारे में मैं क्या बोलूँ? सब बोल दिया इन्होंने. Thank you. Thank you very much. We'd like to thank Melange Lifestyle for associating with our lovely film Piku. It's exactly what the film stands for, beauty and simplicity, and that's what I'm assuming Melange stands for as well. It's a lovely, heartwarming family comedy drama that's releasing on 8th of May, and you know, like we have you know, people in our families. There's a Piku in your family, there's a Baba in your family, there's a Rana in your family, and that's what you'll see on screen on 8th of May. So we'd love for you guys to go and see it. Thank you. The floor is now open for the media bites. I would request if anyone has question, you can please raise your hand. Our associate will pass over the mic, and kindly keep the questions confined to the movie Piku, please. Thank you. So my question to you is, what are the 3 must-haves on a in a summer wardrobe in a girl's for a girl? Like, what are the 3 best things? Definitely a sunblock.
Huh? Yeah, I mean it's the same thing, right? According to me, you might have a different opinion, but according to me, it would be a sunblock. It would be very, very loose, summery clothes. I usually wear a lot of cottons, stuff that doesn't really stick to the body. You let the skin breathe. And a nice pair of sunglasses. Thank you. I'd like to ask you that what kind of benchmark you had in your mind when you decided to join this brand? What kind of rating you'd like to give to this brand? Well, I think it's largely an association with Piku, because there is a marriage there in terms of what Piku is. I think it's what Piku stands for as a woman, as a person, as an individual. I think she represents every modern woman today, someone who works, but at the same time, tries to multitask, I think like all women do. And someone who's modern but still very, very traditional in that sense. And I think that's why this association, was a very, very natural and organic association. Between you and Irfan in the movie. What do I think? Yeah. I think we have great chemistry, yeah. I mean, what am I going to say? You have to tell me what you think. I think based on the trailers and based on the 2 or 3 songs that have released with visuals, I think a lot of people, I don't think people knew what to expect initially, because it is, of course, primarily Piku's journey, and the film talks about a father and daughter's relationship. But one of the things, and pleasantly surprised all of us, is the reaction that Piku and Rana got from the trailers, if I may say. And I think that's a very exciting thing for us, for people who are part of a film, when the audience starts seeing other things other than what we thought of and what we believed in, and then you start, the audience sort of starts to see much more than what we had expected. It's always a great thing. Personally, it's always a sari. If I had the option between wearing a gown or wearing, something Indian, I'd always prefer wearing a sari. क्या ये फिल्म एक फ़र्क पैदा करती है जिस तरह से, क्योंकि आप दोनों के किरदार हम ट्रेलर्स में देख रहे हैं, बहुत ही आम जिंदगी से जुड़े हुए और जज्बात जो हैं बड़े ही नेचुरल नज़र आ रहे हैं, तो वो सफ़र कैसा रहा? They want your answer. Anyway, I just want to continue what he asked about chemistry, and also it will include your question as well. See, sometimes what happens, you don't know how the chemistry is going to be. And while doing it, there are feelings, there are kind of, something happens. And you still don't know how it's going to look in the film overall. But as you see the song, as you see the moments happening, then you know that how this the chemistry is happening. There's something happening. Journey was for me, it was, I was concerned whether we'll have a kind of something common between us where we can have a bonding. And I remember doing the first shot, and I saw her reaction, and I was I said there's something going to happen. And I had a great time, working with her, fantastic. And also because she is very excited about exploring her, other side, which is, which has more of a character rather than just, a glamour. And she is very driven towards it, and it was great, working with her. And just getting her reaction. Sometimes, my face was not towards her. I was saying some line, but I could feel her reaction there. And that was, great, feedback as an actor, Okay, so I'm going to sum it up in this way and say that when people saw the trailer, the feedback that we got is that there's a lot of warmth. There's a lot of, it's very, very relatable. Either people related to his character or my character or to Baba's character. So the characters were very, very relatable. And the one unanimous feedback that we got is that it's a very, very warm, comforting sort of film. And I think that energy comes on screen because we've had that experience.
Shujit is someone, I think he's a wonderful person from within. As a person, I think he's extremely warm and very, very sensitive to people and situations. And I think we've all had such a good time making this movie. And it was so seamless, so effortless, and a very, very pleasant experience. And I think that's what we have felt as characters and as actors on set is what has translated on screen. It's been all over the papers today. I hope even you would have read that you called Kangana last night to wish her good luck for her queen. But what did it take you so long to wish her good luck and clear all the misunderstandings? One, it really surprises me that it's a very personal conversation between two people. So how it goes out sometimes, I find that really amusing and fascinating. Having said that, yes, it was a very, very personal conversation, so I wouldn't want to discuss the details of the conversation. But Deepika, Kangana was the one who did not support your My Choice video also. So should we think that all the misunderstandings between you and Kangana is clear and you are friends? I think it's important. I think it's important for her and me to know where we stand in our relationship and in our equation, and I'll leave it at that. आप दोनों ही लोगों से सवाल होगा, नेपाल में जो ट्रेजेडी हुई है उस पर सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या अपनी तरफ से आप लोग कोई मदद करना चाहते हैं उनकी? We already have. हाँ, जिसका जो बस में है वो करना चाहिए, सेलिब्रिटीज़ जितना कर सकें और यूनाइट होकर कर सकें और सब कर सकें, एटलीस्ट हमारे लिए इतने बड़े भूकंप की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ जो है कितना बड़ा नुकसान हुआ उससे पता चलता है कि ये बड़ी न्यूज़ है। एक्चुअली जिस तरह से अगर कोई भी एक जान भी अगर जाती है किसी भी वजह से, तो वो उसका भी मतलब वक़्त उतनी होनी चाहिए जितनी बड़ी ट्रेजेडीज़ की होती है। Recently in an interview, Ranveer said that you have been his Florence Nightingale and he's very lucky to have you in his life. So what do you have to say? Any clarity you want to give? Florence Nightingale? Yes. During the time he was injured, you've been acting as a Florence Nightingale. Yeah. I think that's what friends do. When you're down and out, when you need strength, when you need support, when you need to be encouraged, when things go well, then everyone's there for you. But I think it's really your family and your friends that are really there for you when you need them the most. And I think that's all I was doing. Thank you everyone for joining us. Thank you, both of you. Yes, thank you so much. Thank you. Thank you. दिल्ली से बहुत सुखद रही और बहुत अच्छा लगा। और दो दिग्गज कलाकार हमारे जो आजू बाजू बैठे हैं उनके साथ समय बिताया हमने। और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना सुखद रहा ये हमारा समय। ऐसा इरफान का ऐसा कहना है कि काफी फ्रस्ट्रेट भी हुए जर्नी के बाद में, बिकॉज गाड़ी उठा ली ऐसा कुछ। तो गाड़ी उठा ली हाँ, कैरेक्टर की देखिए, हर कलाकार को थोड़ा बहुत बोझ तो उठाना पड़ेगा, वो गाड़ी हो या कमोड हो कुछ भी हो। तो उस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि सब अपना अपना बोझ उठा करके चल रहे हैं, लेकिन बड़ी सुंदर और साधारण सी कहानी। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? यही तो देखते हैं आप। दो चीज़ों के अलावा आपने क्या देखा है? उसके अलावा एक्सपीरियंस काम करने का साथ में, उसके पहले सब तो हाइपोथेटिकल था कि दीपिका के साथ कैसा होगा, बच्चन साहब के साथ काम करना कैसा होगा, सुजीत के साथ कैसा होगा, मौसमी के साथ कैसा होगा, ये सब तो अंदाजे थे। लेकिन जब किया तो उसके बाद वो एक्सपीरियंस हो गया आपका, और वो प्रेशियस एक्सपीरियंस है। So, Amit sir, you have been shooting all across India. The pictures have been leaked out before where you've been cycling or you'll be Gujarat में हो या फिर कहीं पे भी हो सब. So, do you think that people have the rough glimpse about the movie कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है? लीक नहीं होता, तो हम जानबूझ के डालते हैं। मुफ्त में प्रचार हो रहा है,
क्या उसमें खराबी है? ब्लॉग लिखता हूँ मैं रोज रात को, तो उसको थोड़ा सा और आकर्षक बनाने के लिए एक आध तस्वीर आ जाए तो अच्छा लगता है, इसलिए हमने डाल दिया। उसमें कोई भी ऐसी तस्वीर मैं नहीं डालूंगा बिना पूछे प्रोड्यूसर से, उनसे अनुमति ले लेता हूँ मैं कि आप अगर ठीक समझें तो मैं ये छाप दूँ, तो कहते हैं हाँ, अगर कहते हैं ये मत छापिए तो मैं नहीं छापता। लेकिन अब अगर मैं कलकत्ते की सड़कों पर साइकिल चला रहा हूँ और आजकल के जैसा ज़माना है 1 करोड़ कैमरा साथ में चलता है तो वो तो ले ही लेंगे छवि, वो तो छप गई तो बाहर निकल गई बात। तो इससे पहले कि वो निकालें हम निकाल देते हैं। लेकिन वो हार्म करता है या फिर हेल्प करता है? हाँ जी, सो वो हार्म करता है हेल्प करता है? ये क्या मुझे मालूम नहीं है, तो पता चलेगा बाद में। बच्चन सर, अगर बात करें पीकू की, इट्स एन आउट एंड आउट फैमिली एंटरटेनर, लेकिन बहुत समय से ऐसी आउट एंड आउट फैमिली एंटरटेनर आई नहीं, तो आप भी ये बात को मानते हैं कि ऐसी मूवी जिसमें इतना एक फैमिली एंटरटेनर टाइप एक हो, जिसमें सब एलिमेंट्स हो, वो काफी टाइम से मिसिंग था? जी, ऐसा सुनने में आ रहा है, हालांकि मैं बहुत एक्शन और कॉमेडी आ चुकी है, तो ऐसी मूवी आएगी थी आपको? मुझे इसका ज़्यादा ध्यान नहीं है, ना ही मुझे इसका ज्ञान है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं ऐसा सोच रहे हैं तो अच्छा ही है, इसमें पूरा परिवार जाए देखने। Irfan bhai, was it difficult romancing Deepika on the big screen? Deepika made it very comfortable. It was very enjoyable. It was very memorable. I think ये बहुत ही खूबसूरत याद है मेरी। और इक्वेशन जो है, आई थिंक दीपिका को मैं कभी मिला भी नहीं था, हम लोग जैसे कभी हेलो हाई भी नहीं हुआ था मेरा दीपिका की याद यही है कि मैंने पहली बार इनको ऐड में देखा था बहुत पहले, तो मैंने कहा यार ये लड़की फिल्मों में आना चाहिए। तो थोड़ी देर बाद अपनी न्यूज़ पता चली कि शाहरुख के साथ फिल्म कर रही है। इनका ऐड आया था, मैं भूल गया किसका क्या था वो ऐड, क्लोजअप वाला होगा शायद। तो कुछ लोगों के चेहरे होते हैं इस तरह के कि वो मतलब थोड़ा चुंबक होता है के अंदर। जब मुझे याद है शाहरुख को मैंने पहली बार देखा था जब वो वहाँ अपने कमानी थिएटर में, जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था, एक बैरी जॉन की कुछ रिहर्सल चल रही थी, उसने बुलाया था मुझे और ये सब लोग सुन रहे थे, कुछ खड़े हुए कुछ लड़के, बैरी जॉन कुछ बोल रहा था, उसमें शाहरुख कहीं पीछे खड़ा हुआ था, मेरी नज़र उस पर गई थी, मैंने यार ये कौन है, ऐसे कुछ लोगों की होती है पर्सनैलिटी। तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरा सौभाग्य मतलब थोड़ा सितारे ठीक है कि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। एंड ट्रेलर से आपको समझ में आ जाएगा कैसा हमारा काम हुआ। दीपिका, आप क्या कहना चाहेंगे? How was your experience shooting with Amitji and Irfan Khan? A lot of learning for me, I think, and I consider myself extremely fortunate that I get to work with both of them being in the same film. And as an actor, sometimes, I'd sit behind, the monitor with Shujit and watch the two of them perform, and you're like mesmerized, how they just, What? Rubbish. No, not really, I'm telling you. Just the way they would talk to each other, conversation, bouncing off each other with so much ease but still within their characters, and it was so exciting. You didn't want that scene to end. Very, very exciting, and I'm sure consciously, subconsciously, I'm sure I've learned a lot just watching them perform. दीपिका, सोशल नेटवर्किंग मीडिया पे लोगों को आपकी ये बिंदी बहुत पसंद आ रही है, टिकली जो भी बोलते टिकली बिंदी, हाँ। बिंदी। तो कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? बिकॉज लोग हर 50 लेडी में दूसरी लेडी दिख जाती है ऐसे, तो एक तो I love anything that has to do with the Indian ethnic look, whether it's a sari, whether it's a salwar kameez, whether it's a bindi, whether it's kajal. I think that's what makes us as Indian women stand apart from the rest. And I'm happy that in a movie like Piku, I get to use that. Even the kohl in the eyes, it's a very, very Bengali thing. The way the liner is, the way the kajal is applied, the size of the bindi, that also makes a difference. The size itself will tell you whether the lady is from Bengali or whether she's South Indian. The color of the bindi, it says a lot about the woman, where she comes from. But I can't take any credit for that. I'll give Juhi Chaturvedi, who's the writer, as well as Veera Kapoor, who's done the styling of the film, and Shujit, of course, who's put it all together. Then Madras Cafe was a political thriller. Now Piku, इतनी diverse आपने movies बनाई है, तो Family comedy drama. Family comedy drama. Family comedy. कैसे आप कर लेते diverse, और ये idea आपने आया कब था, कैसे how did you develop? Dealing with constipation. मतलब कॉन्शियसली कुछ मतलब डेलिबरेटली नहीं किया था कि डिफरेंट जॉनर में काम करूंगा, बट आई थिंक मी एंड जूही आर अ वेरी गुड टीम,
So she came up with this idea about father and daughter and constipation and this Piku and Piku's world. So नहीं, I just see कि is there a vision, मतलब है कि नहीं इस फिल्म में, इस फिल्म का कुछ एक profound insight निकलता है कि नहीं, इस फिल्म में से कुछ 2 घंटे तक क्या मैं ऑडियंस को एंगेज करके रख सकता हूँ, एंड कुछ मेरी जो अपनी बातें हैं क्या नहीं से दोज मज़े से कह सकता हूँ कि नहीं, जो मेरी थ्योरीज हैं मेरी ज़िंदगी की अपनी. सो वो लगा तो मैंने बना दिया, बट इट वॉज नॉट अ डेलिबरेट अटेम्प्ट कि मैं कोई जॉनर चेंज करूँ फ्रॉम पॉलिटिकल थ्रिलर से फिर एक कॉमेडी अगेन. नो आइडिया, अगर और कोई आइडिया आएगा तो आई विल डू व्हाटएवर इट इज. बच्चन साहब, आपने और दीपिका ने आरक्षण में भी साथ काम किया था और पिता और बेटी की भूमिका थी, इसमें भी वही भूमिका में है आप लोग. क्या असल जिंदगी में भी कुछ क्वालिटीज नजर आती हैं बेटी की दीपिका में जो आपको श्वेता में नजर आती है? क्योंकि श्वेता ने भी हाल में कहा था कि दीपिका जो है वो बेस्ट डॉक्टर हैं, तो सर क्या कहेंगे? जी, श्वेता मेरी बेटी है, दीपिका पडुकोन मेरी सह कलाकार है, पीकू मेरी बेटी है. इससे आगे मैं और क्या कहूँ. Deepika, talking about the movie's name Piku, this movie title Piku match with your name Deepika, last 4 words. So it was a conscious decision, yeah, it was just a coincidence. It was a coincidence, but he came up with it. Suddenly we were shooting in Kolkata, no? I remember in that in the Angan we were shooting, and one day he suddenly came and said, "Hey, Deepiku," and it just stuck. You know, now everyone that I'm meeting has started calling me Deepiku. Thanks. Mr. Bachchan, which aspect of your character from the film do you relate to the most? No, we play characters because they are written by somebody else. Sure, but we don't want them to know something about us. I don't. So I'll follow what Juvi has written, what Juvi ji has written, what Shujit wants me to interpret as a character. But I don't want to see myself in it. It would be so boring. I mean, I think that we are hired to do that. We are hired to play somebody else's interpretation of what they have conceived or created. I don't think we look for ourselves in them. I don't know. At least I don't. I don't know about Deepika. Yeah, if Deepika and Irfan, would you like to? Sometimes you do tend to. Sometimes you do take references from real life. That's precisely why I'm asking. So, anything from your... I think those references are more a feat of observation. What we see in life, and something sticks in us, and we feel that maybe this can be sort of duplicated or referred to when we are actually enacting a character. But I think by and large we have some kind of a computer that keeps working 24 hours. And it's somewhere it sinks in and remains with us, and many years ago, or sometimes years and years ago, something happens at the time of your performance, and suddenly all of that comes back, and you see it being interpreted in front of the camera. But I don't think that I deliberately go out seeking myself in a character that has been devised by somebody else. For me, there's an aspect of Rana which was not so apparent on the paper, was that he lives in a particular atmosphere in his family, and there's a strong desire, or that strong sense of seeking of somebody with whom he can connect. That aspect has flourished very nicely, and I identify with that, that thing of Rana. I think it depends from character to character, and of course I think like Amitji said, largely the character is what the director, the writer, they look at it a certain way. But from my limited experience, yes, I do draw from my own experiences sometimes, like he said, maybe for reference. It may not be, like there's no one character that I completely identify with. People ask me which characters, that the ones that I've played, which ones do I identify with. It's a little bit of Piku, but it's also a little bit of Naina Talwar. So it may not be every aspect of every character, but you've been through certain experiences in life, or you feel a certain way, and
it helps me a lot, at least in my performances. If I've had ये जवानी है you know, so I guess, but also every actor has a different process, different things work for different people, you know, so whatever works. उनकी एक मूवी हु विल टूम करके एक मूवी आपने नरेट की, तो आपका कुछ कमेंट, आप कुछ कहना चाहेंगे? आ रहा है on 10th May, तो हाँ, मैं अपनी ओर से उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। बीच में हमने सुना था कि वो थोड़े से अस्वस्थ हैं, मैं आशा करता हूँ कि वो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएं। उनके साथ हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, आपने ट्विटर पे डाला था कि आप अपने पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी पे वेबसाइट खोलने वाले हैं, तो आप उनके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। वेबसाइट उसके लिए एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी पड़ेगी और काफ़ी समय चाहिए होगा, क्योंकि बाबूजी का जीवन जो है वो संक्षेप में नहीं कहा जा सकता। पीकू काफी वुमेन सेंट्रिक फिल्म है और आपका कुछ समय पहले एक वीडियो भी आया है जो वुमेन एम्पावरमेंट पे था, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उसमें जो आपने वर्डिंग्स बोले हैं, क्या आप उन्हें अपनी रियल लाइफ में मानती हैं? क्योंकि आपने अभी एक इंटरव्यू में बोला भी था कि कोई आपसे माय चॉइस के बारे में नहीं पूछा है। You know? उसके बारे में वो तो कल ही किया था मैंने। तो उसके बारे It's out already. जो आपने वर्ड्स बोले हैं उन्हें मानती है? क्योंकि कुछ लोगों ने बॉलीवुड हो चाहे आम जनता हो, उन्होंने अप्रिशिएट किया है, बट कुछ लोगों ने बॉलीवुड की हस्तियों ने उस चीज़ को नापसंद भी किया है। क्या कहना चाहिए? इस टॉपिक पे मैं काफ़ी कुछ कहना चाहूँगी, बट आई डोंट थिंक दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म फॉर मी टू स्पीक अबाउट समथिंग लाइक दैट. I'd like to discuss it a little more in detail, so maybe another time. बट आपने जो उसमें वर्डिंग्स बोले हैं, क्या आप उन वर्ड्स को रियल लाइफ में मानती हैं? Like I said, I think there's a lot that has been said in that. There's some things that I identify with, and no, there are some things as an individual, as a person, I do not identify with. Yeah. इस विषय की एक धारा अगर हम इस पे हम चर्चा करें, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी ये जो कहानी है, ये एक बड़ी इवॉल्व कहानी है। कई मानों में मैं समझता हूँ कि काफ़ी रेवोल्यूशनरी भी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी उसमें विचारधाराएं हैं जो कि जो आम जीवन है, जो समाज में जो आजकल चलता है या ऐसा माना जाता है कि चलता है, नारी को लेकर के, पुत्री को लेकर के, बेटी को लेकर के, उसके संबंध में बहुत सी चीज़ें ऐसे कही गई हैं और मानी गई हैं पिता और पुत्री के बीच, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं चाहूँगा कि जब आप फिल्म देखें तो उसकी चर्चा करें, क्योंकि और मुझे जो कहना था उसके बारे में मैंने ऑलरेडी कह दिया है उस इंटरव्यू में. Amisha, in Piku you deal with constipation. In real life also you deal with constipation. Yeah, I was actually worried about that because the delay in coming here was, I was having a slight little problem and. Come on. सर आपका निकनेम क्या है? ये मेरा प्रॉब्लम है, आपका है, सबका है. सर आपका निकनेम जानना चाहेंगे. किसका? मेरा? बच्चन कहते हैं आपको. रियल लाइफ में इनका जो नाम है पीकू है. हाँ, पीकू. रियल लाइफ में कुछ निकनेम अगर हो सर आप शेयर. हाँ जी है. जी क्या? आपको क्यों बताऊं? हाँ जी. अच्छी बातें शेयर करनी. अभी अच्छी है बुरी है तो मैं निर्णय करूँगा. सर आप कुछ भी कहेंगे वो अच्छा ही होगा सर. अरे नहीं, ऐसा कह करके आपको मेरा पेट नेम जो है वो नहीं पता चलने वाला. मिलते बहुत कम है. हाँ? आप कुछ कहते भी नहीं, सबको मालूम है. कई बार मैंने उसके बारे में लिखा भी है. और जब आप पैदा नहीं हुई थी, बहुत से आप जैसे जो आई थी कलाकार यहाँ पर, आप कलाकार हैं आप लोग तो, उनसे नहीं बिल्कुल नहीं है. कलाकार बड़ा मुश्किल काम है आपका, मैं आपको बताऊं जी, आसान काम नहीं है. अगले जन्म में मैं चाहूंगा कि मैं एक पत्रकार बनूं. हाँ? अरे आप मेरे जो पुराने जो 40 साल पहले आप पढ़ लीजिए, मेरे जितने भी व्याख्याएं हैं उन सब में मैंने यही कहा, अगले जन्म में सब पत्रकार बनना चाहूंगा. हाँ जी, खास वजह है कि मैं प्रश्नों का उत्तर देता अब मुझे प्रश्न पूछने का वक्त आ गया. हाँ जी, अगर किस तरह के सवाल पूछना चाहते हैं? अगर सर इसके लिए पुनर्जन्म लेना पड़ेगा और पुनर्जन्म अभी हुआ नहीं है. फिर जाइए भाई साहब, ये बात सीरियस है. सुनिए,
पुनर्जन्म हुआ नहीं है अभी। जब पुनर्जन्म होगा तब फिर आपसे मुलाकात होगी। अब पता नहीं आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं कि नहीं, ये भी एक अलग चर्चा हो सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तब जब पुनर्जन्म होगा आपका हमारा आमने सामने होगा तब हम आपको उत्तर देंगे। अभी कैसे दे सकते? There is a new nudity clause which has come up, which will be mentioned in the contract of the actors. So what's your take on that as an actor? I can't comment on it because I don't know what the clause is. If I explain it in one line, You're not a lawyer either to be explaining it to me, so I don't think any of us are in. I don't think it's right for me to comment on anything that I don't know anything about. आपने सबसे ज्यादा शूट किया है अमित सर के साथ, तो कोई एक खास बात, वैसे तो हमने कई खास बातें हैं, लेकिन फिर भी कोई एक खास बात जो आप मीडिया से शेयर करना चाहेंगे, आपने उन्हें नोटिस की हो? He steals my food. What? Steal my food. Snatch. नहीं, इसमें क्या है देखिए, हम लोग साधारणतः 3 वक्त पे खाने वाले लोग हैं, इनका कुछ वातावरण अलग है। ये हर 3 मिनट पे खाना खाते हैं, लेकिन इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ताज्जुब की बात ये खड़े हो रही इस जाता कहाँ है खाना में जानना चाहता हूँ। वैसे की वैसे दुबली पत्नी है। My Peru, he would steal my Peru. और अभिषेक को हम एक साथ फिल्म में देख पाएंगे आगे की सरकार के बाद? कोशिश की जाएगी, देखते हैं। क्या आपके होम प्रोडक्शन की एक भी फिल्म ऐसा कुछ सोच रहे हैं, स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? विचार किया जाएगा, इस पर विचार किया जाएगा। अमित जी, क्या आराध्या को देख पाएंगे सर फिल्मों में? हाँ जी, आराध्या को अभी हमने शादी करने ये मैं तो उनके माता पिता हूँ नहीं, उनका दादा हूँ, तो आप माता पिता से पूछिए। आपकी इच्छा कुछ? हमारी इच्छा आपको क्यों बताऊं? तो इरफान जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस दिल्ली से कलकत्ता तक का, और साथ ही में एक बेबी भी है और एक 70+ के ये जो इंसान भी है आपके साथ? हाँ, मतलब उम्मीद तो यही थी कि बहुत ही सुहाना सफ़र होगा, जिसे सिनेमा में दिखाया जाता है, यादगार सफ़र होगा। लेकिन इस फैमिली के साथ जो मेरा सफ़र है बहुत चैलेंजिंग सफ़र था। उसकी अपनी खूबसूरती है, उसके अपने चैलेंजेस थे, बट लाइफ चेंजिंग जर्नी है ये राणा का पीकू की फैमिली के साथ। मतलब अब इसकी लाइफ जो ये घर से निकला है इनको लेके, अब जब वापस लौटेगा तो इसकी ये कभी उसकी ज़िंदगी वो नहीं होगी जो थी। अब आप उसको कैसे भी समझ लीजिए, तो फेरी आएगी और दूध की नहरें बहेंगी और आप एक दूसरे के साथ होते रहेंगे। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी के अपने 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 चैलेंजेस होते हैं, अपने स्ट्रगल्स होते हैं, अपनी खूबसूरतियाँ होती हैं, अपने चेरिश करने वाले मोमेंट्स होते हैं। जी, अगर देखा जाए तो आप यूजली जो मूवीज़ करते हो काफ़ी हार्ड हिटिंग होती है, ये आउट एंड आउट फैमिली एंटरटेनर है, तो क्या आपने सोचा कि आपने अभी ये चॉइस किया अपने करियर में, क्या ऐसी खास बात है? मैंने इसीलिए किया ताकि आप ये सवाल पूछ सकें, क्योंकि हार्ड हिटिंग फिल्में हमेशा करना आप नहीं करना चाहते हैं, आप रोमांटिक फिल्म ही करना चाहते हैं। मैं करना चाहता था रोमांटिक फिल्म, मैं कॉमेडी भी करना चाहता था, और मैं सही स्क्रिप्ट ढूंढ रहा था, कंपनी से सही स्क्रिप्ट मिलेगी। एंड आई थिंक ये जब फिल्म आई तो मुझे लगा कि इसमें दोनों है, इसमें रोमांस भी है, इसमें कॉमेडी भी है, तो एक फिल्म में मेरी दोनों इच्छाएं पूरी हो गई, और मैं और करना चाहता हूँ रोमांटिक फिल्में, बट स्क्रिप्ट जो है मुझे पसंद आनी चाहिए। I am hopelessly romantic. I am not practical at all. I am foolishly romantic actually, and that's what I can say. एक चॉकलेटी हीरो की जगह आपको क्यों सिलेक्ट किया गया? क्योंकि उनको लगने लगा कि चॉकलेटी हो गया हूँ मैं। मुझे पता नहीं क्यों किया है। आई थिंक क्योंकि कहानियों का स्वरूप बदल रहा है। जो हमारी हिंदी सिनेमा है वो हिंदी सिनेमा बदल रहा है, उसकी कमर्शियल डेफिनेशंस बदल रही हैं, और हमेशा से जो है कई एक्टर्स आए हैं जिनको कि पहले कन्वेंशनल नहीं माना गया, फिर धीरे धीरे ऑडियंस से जब उनका कनेक्शन हुआ तो उनको हर आदमी ने एक्सेप्ट कर लिया,
वो जो राजेश खन्ना हो या मिथुन चक्रवर्ती हो, नसीरुद्दीन शाह हो, अमिताभ बच्चन हो, दिलीप कुमार हो, कई बार शुरू में जो है वो जब आदमी अपनी कुछ स्ट्रॉन्ग कुछ चीज़ नोशन लेके आता है तो एक्सेप्टेंस में थोड़ा टाइम लगता है, बट उसका अपनी पर्सनालिटी किस तरह से इंटरेक्ट करती है ऑडियंस के साथ, वो डिसाइड करती है कि ये इसको एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो हो सकता है मेरी कुछ चीज़ें पसंद आती हैं ऑडियंस को, हो सकता है मेरा कुछ कनेक्शन होता हो ऑडियंस से जो जो मुझे एक्सेप्टेबल बना रहा है। बच्चन साहब के साथ केमिस्ट्री कैसी रही? बहुत बढ़िया, आई थिंक मेमोरेबल केमिस्ट्री है, मैं चाहूँगा कि फिर कभी मौका मिले, और ये ख़ास तौर से इस तरह की राइटिंग में हमें करने को, टिपिकल अगर वो स्टीरियोटाइप फिल्म में अगर हमें करते शायद साथ तो शायद उतना मज़ा नहीं आता। ये इस फिल्म में जो है दोनों, क्योंकि वो भी किरदार कर रहे हैं, वो भी एक कैरेक्टर कर रहे हैं, और इस फिल्म में आप बच्चन साहब को बिल्कुल नए रूप में देखेंगे। बच्चन साहब ने जिस तरह से अपने आप को मोल्ड किया है वो बहुत इंडेयरिंग है, बहुत एडमायरेबल है। मैं भी एक कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो इस तरह की प्रमाइश में जहाँ के दो लोग, 2 एक्टर, 3 एक्टर, 4 एक्टर जो हैं वो स्टोरी के लिए काम कर रहे हैं, वो हमेशा इन्जॉयबल होता है, और उसमें एक्टर्स का इंटरेक्शन जो है मेमोरेबल होता है। और ख़ासतौर से बच्चन साहब, उनको सिर्फ काम करते हुए देखना अपने आप में एक्सपीरियंस है, जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से अप्रोच करते हैं अपने काम को लेकर, और जिस इंटेंसिटी से, जिस शिद्दत से, जिस आज्ञाकारिता से वो काम करते हैं, वो अपने आप में इंस्पिरेशनल है। It was just a situation. I was helpless. I couldn't move the schedule. They had fixed schedule and Piku had fixed schedule. I wanted to do both the films. I loved my character in Martian. I never wanted to leave it. This is my second time, second chance working with Ridley Scott. But again, even second chance, I missed that chance. But I am, I'm pretty sure that something good will come out of it. Something good is going to happen. Whatever was the reason, maybe I'll work with Ridley Scott in another film. आप हॉलीवुड में बहुत नाम बना चुके हैं, अब इंडियन एक्टर्स हॉलीवुड फिल्में करते हैं, हॉलीवुड जो विधु विनोद चोपड़ा सर ने बनाई है, प्रोड्यूस और डायरेक्ट की ब्रोकन हॉर्सेस, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया टाइप्स फिल्में हो रही हैं, क्योंकि अब इंडियन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स अमेरिकन एक्टर्स और अमेरिकन फिल्में बना रहे हैं। तो क्या हो रही है, सवाल क्या है? मेक इन इंडिया कैंपेन के लिए एक तरह से इसका, जैसे विधु सर ने कहा कि मेक इन इंडिया कैंपेन को वो जोरों से कर रहे हैं, अमेरिकन प्रोड्यूस और डायरेक्ट करके। नहीं, इंडियन टैलेंट को जरूर जो है इनकॉर्पोरेट करेगी हॉलीवुड इंडस्ट्री, और वो लोग बहुत आतुर होते हैं किसी भी टैलेंट को अपनी चीज़ में इंक्लूड करने में, और वो अलर्ट भी हैं बहुत। इसीलिए शायद जो है उनको वहाँ अलग अलग मुल्क के देश के एक्टर्स को, आर्टिस्ट को और टेक्नीशियंस को वहाँ इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ये मतलब आई थिंक हमारी इंडस्ट्री के भी लोग जाएंगे वहाँ ज़रूर और वहाँ काम करेंगे। एज ए फिल्म मेकर आई विश विधु साहब कैन कंटिन्यू मेकिंग फिल्म्स देयर एंड मेक सम मार्क इन हॉलीवुड सिनेमा, and I wish him luck because I think he made a good film. The earlier film which he made, what was the name of the film? Broken Horses. Broken Horses. It's I met the actors of that film and they were really raving about the Vinod Chopra. प्रोड्यूस में कर रहा हूँ, मैंने मदारी फिल्म है एक जो निशिकांत के साथ है, उसमें मैं प्रोड्यूसर हूँ। एक काश फिल्म है जो काश फिल्म एक और है जिसको मैंने प्रोड्यूस किया है शैलेश के साथ। तो कुछ फिल्में जिनको मुझे लगता है कि हाँ इनमें पोटेंशियल है ऑडियंस को एंटरटेन करने का, और इसमें कुछ फ्रेशनेस है, इसमें कुछ नयापन है, ये कुछ कुछ देगी ऑडियंस को नया, तो मैं और मेरे बस में होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। Irfan, you're doing Jurassic World. You're also working with Tom Hanks for Inferno. I want to know what really draws you towards Hollywood. Would you say Hollywood is a bigger playground when it comes to variety of roles? Because and also, are you also afraid of being typecast? Yeah, it's a very interesting question. And what you said is true. That it's a bigger playground, and it's not just a bigger playground. It is a bigger playground, but it gives you a chance to work on your craft in much more fine manner.
You know, it gives you a chance to act in a much more personal way. You know, it's a very personal way. You know, and it requires you to dive deep inside the story. That kind of opportunities sometimes you don't get everywhere. So I think it's those opportunities, you know, I'm looking for those opportunities where they can stretch me as an actor, you know, where they can challenge me as an actor, and I can evolve, you know, as an actor. And you know, and it gives me a chance to work with directors who are world class, you know, and they throw different kind of challenges in front of you when you are dealing with their stories. You know, when they conceive a character in a certain way, and you conceive a character in a certain way, and then how you how you interact and how you collaborate, it's a completely different experience. You know. I do enjoy. I don't drive in cities because cities doesn't have infrastructure of driving. You know, in cities you want somebody else to drive you, but as you go out of city, I love driving. I love driving, and people likes my driving, by the way. People loves my driving. मैं तलवार है जो मेघना ने डायरेक्ट की है, विशाल साहब ने उसको प्रोड्यूस किया है। मदारी है जो शैलेश ने और मैंने प्रोड्यूस की है, निशिकांत ने डायरेक्ट की है। जज्बा है जो संजय गुप्ता डायरेक्ट कर रहे हैं, जी और दूसरी कंपनी उसको प्रोड्यूस कर रही है, वाइट ब्रदर्स। जुरासिक पार्क आने वाली है, एंड देन इन्फर्नो है। फिर उसके बाद जो है तिग्मांशु के साथ एक फिल्म मेरी पाइपलाइन में है, अनुराग बसु के साथ है, अभिनय देव के साथ है। तो कौन सी फिल्म मटेरियलाइज होगी, आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर। Can you just say these two lines? Don't just pray, but donate one of your salary, one day of your salary to. Please, thank you. That's it. Please let that help which is given to Nepal people, please let it reach common man. Please let it reach the victims. Thank you.
can't see my, I was very well decided myself. Anyway, I know it's the same kind of, it has the same kind of prestige and exhilaration when you see yourself, picked up by Amul thing, I know Makbul was picked up by that, and Pansi was picked up by that, and something that suddenly you start off, Arey Amul mein aa gaya, Amul mein aa gaya. So I don't know what is this yardstick, but and I try to be transparent, but I never knew that I will be so transparent that I won't be seen. So I need to come back, to reality. Anyway, thank you so much, sir. Thank you. I have to admit that I do feel a small sense of achievement right now that I've made it to the book. I think in the last 2 years I've probably made it to the Amul ad about 6 or 7 times. Maybe 1 or 2 slightly controversial ones, but largely about the films. So thank you so much for that. Like I said, I think it's a brand we've all grown up idolizing in a sense. It's definitely one of India's most iconic brands. And I'm ecstatic about this association, and thank you so much for making Piku so special. Good afternoon, and thank you, Amul, and let me tell you that the credit for this whole socially relevant campaign, I think Rahul deserves an applause, and also an Amul. मैं only एक ही छोटी सी बात बोलूँगा कि Piku is associated Amul and Piku, and our baseline is motion से ही emotion. I don't know आप लोगों को कितना motion का problem है, लेकिन let me tell you one thing. One Amul ice cream in the night, and next morning you see how your motion is. I'm telling you. Thank you so much for coming here. Deepika, Irfan, Sujeet, full team, the Piku team, guys, best of luck for tomorrow. I have no doubt, Bachchan Saab is not here, but we'll all be there cheering. Okay guys, best of luck. Best of luck. For its creative ads, how do you think the movie will really benefit, now that you guys are in the book of Amul also? I think more than just from a creative point, I think it's what Amul stands for and what Piku stands for. And I think in that sense, the mood, the essence, the flavor, I think all of that is where we found a match. Correct me if I'm wrong, but I think Amul, what I've noticed as a brand, has always been one of those that's very, very rooted, very traditional, very, very Indian, but at the same time progressive. Yes, I think it's a family brand, it's a family pack, and this is a family film. So I think that there can't be any better association than Amul. True. Irfan, any thoughts on the association? Correct, jo bola will be perfect. It's kind of the measure for how popular you are because they pick up subjects. Like where have you been? I'm here.
So do you think it's also kind of the measure for how popular your film is? Because they pick up subjects that are trending and things like that. It's kind of also the great impetus for you, isn't it? No, I think also for us it makes it even more special because I don't think they've done an in-film sort of association before, and I think that itself says a lot about the film that we have to offer. And like he said, I think the qualities that they stand for as a brand, I think they found that match, which is why they went ahead with this association. And I think it's not one of those forced ones. It's really very, very organic. It just flows into what the film is trying to say. Sure. Right. So, we are missing Mr. Bachchan. We were really hoping that we get to see the whole cast put it together, but that kind of didn't work out. What happened? Yeah, I think he'll catch you soon. I think. Don't worry. Maybe He's gonna come soon. in a day or two he'll match you. I'll meet you soon. Everybody's speaking about the Salman verdict. As a part of the industry, any comments that you guys have, anything Sujit? If I'm as an individual, I would like to just say when you talk Without about a subject getting like into that, as sensitive, what is your viewpoint when you have to think I about cannot it? give my viewpoint right now because it's too sensitive. Anything can be blown out of proportion, and I feel for everybody, people who have been who suffered, and the way people are suffering. But I cannot give any comment right now. It's not a. Sure, but what about the justice? I can't because it's in court. Subject is in court, and we cannot give. And As a part of the film industry, how do you and also knowing Salman, being there for him. I'll talk to you about Salman later. Once let this settle down. Yeah. Okay, so can you give us your viewpoints on it? On what? On the whole verdict that came out yesterday, and of course the interim bail being given to him. It's very difficult because I was not in the court, and I have not heard anybody. I don't know who is for and what kind of arguments has been given. Sure. So it's very difficult to give it and tell you what my point of views are, because I think the point of views lies with the court of law. But Sujit, two of his films are in a... No, I'm requesting you. Sure. Don't ask about this because you know that this is in the court of law and we cannot talk about it. We don't know any arguments Apart about from it. legalities, being a part of it. No, what is apart from legalities? There is nothing apart from legalities. There's money riding on him right now. As much a citizen of India as you are a citizen of India, and I think we will have to go by what our land of law decides, right? When you it's a timely film, and you already said that how much it is with such a big budget when you have such actors. Has this expectations now? Who told you it's a big budget? I mean, it's a big film, as in you have such big stars. I mean, I'm sure they are. Yeah. So in that way, I mean, aren't you like? Did you do the research on this budget? How much? I have no idea. Please tell us the budget as well. That's a great question. No. Why didn't you research it? Why did you I didn't ask for the budget. I said it's a big film. What are you asking? Sawal here ki now are you feeling confident? Are you feeling slightly skeptical that now that the judgment day for the film Friday is coming out? See, me as a director, no, I am not nervous because I would have been nervous when I was starting the film, but now it's gone. Now it's not in my hand, and I think whatever the people's verdict is, till now, whatever shows we had, the response from the industry has been quite positive, and that gives us a confidence. And let's see what happens tomorrow. Okay, Ranveer Singh has tweeted a very interesting tweet. He has said that your Piku performance is like best of your career so far, and he's not being biased about it. What do you have to say about that? I think I take it in the same way as 100 other people have tweeted it. So you should ask me about those also. So, did any plans to make Piku a series and to have a sequel also? That's a cool cover. Yeah, we are making it into a television series. About 8-9 sequels we're planning. यार अभी फिल्म रिलीज नहीं हुआ मेरे को बजट भी बोल दो सर मैं कैसे अगर मुझे सीक्वल बनाना होता तो मैं विकी डोनर का बनाता पहले है कि नहीं अभी नहीं सोचा है कोई आइडिया आएगा लेकिन सबसे पहले आई विल अनाउंस कि नो आई हैव गॉट एन आइडिया फॉर 2 All the best guys. Thank you so much. मिल गया मसाला ओ ये मुझे आइडिया नहीं है ये इसी से बात है ना Last two questions, please. आप पीकू के लिए गए Thank you. Thank you. इसी से बन जाएगी स्टोरी मुझे लगता है What?
हाँ, तो जो आप सवाल पूछेंगे उसके हिसाब से जवाब देंगे हम। और पीकू के बारे में पूछेंगे तो पीकू के बारे में जवाब देंगे, बताएंगे फिल्म किस तरह की है, क्या है फिल्म में। बहुत कुछ सुन लिया होगा, जो लोग देख के आ रहे हैं अभी उनका वर्ड ऑफ माउथ जैसा है। और हमें ये पता चला है कि ओवरसीज़ में सबसे बड़ी ओपनिंग है इस साल की, और कई सिटीज़ हैं यूएसए में जहाँ थिएटर फुल नहीं होते, इसके थिएटर फुल है। पाकिस्तान में, कराची में, हिंदुस्तान में तो हो ही रहा है। तो ओवरऑल जो है फिल्म ने बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज़ किया है। हमें उम्मीद थी कि फिल्म हिट होगी, लेकिन इतनी बड़ी हो जाएगी 2 दिन में ये पता नहीं था। एंड इट्स कुछ नया एक्सपीरियंस करवा रही है फिल्म लोगों को। और लोग जो है इस फिल्म के बारे में जो कॉमन रिएक्शंस है वो ये है कि एक तो ये फिल्म ख़त्म नहीं होना चाहिए, चलती रहना चाहिए। दूसरा ये है कि एक बार देखने के बाद उनका दिल नहीं भरता, बोलते हैं हम एक बार और देखेंगे। ये ओपनिंग हमें बहुत ही अच्छी मिली इस फिल्म के जरिए। एज एन एक्टर क्या कुछ फीलिंग होती है जब फिल्म की ओपनिंग इतनी बेहतरीन होती है? येस्टरडे जैसे मैंने ट्वीट भी किया था, मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था कि कई बार आप कुछ काम करते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता पूरी तरह से, और मास लेवल पे जो है उसका अप्रिसिएशन नहीं हो पाता। तो कई बार आपको लगता है कि यार अगर ये मतलब फिल्म चल जाती तो अच्छा लगता है। तो हल्कापन महसूस होता है, खूबसूरत लगता है, दिल खुश रहता है। इरफान, फ्राइडे को मैं रिव्यू कर रहा था तो लोगों का कहना है कि किसी एक की एक्टिंग नहीं कह सकते कि किसी एक ने बेहतरीन एक्टिंग की है। लोग मतलब बहुत ही कंफ्यूज थे कि हर किसी ने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है इस फिल्म को देख के। जब लोगों ने मिस्टर बच्चन, दीपिका, आप, तो कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? ये जो है जब ऐसा होता है तो ये सिनेमा की जीत है, ये उस कहानी की जीत है जहाँ के मतलब सब लोग जो हैं अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, और लोग सबके बारे में इसलिए बात करना चाह रहे हैं कि सबका किरदार उतनी खूबसूरती से लिखा हुआ है और उस खूबसूरती से पेश हुआ है कि आप किसी एक को नहीं देख पा रहे हैं, पूरी कहानी को देख रहे हैं, और सब उसमें जो है बहुत अच्छी तरह से अपना अपना योगदान दे रहे हैं। और वो एक जज्बा भी फिल्म कर रहे थे, तो हम जानना चाहेंगे कि कैसी चल रही है वो शूटिंग? अभी शूटिंग बाकी है उसकी काफ़ी, तो जब शूटिंग पूरी हो जाएगी तो फिर उसके बारे में बात करेंगे। तिग्मांशु ढुलिया के भी कुछ प्रोजेक्ट हैं? तिग्मांशु का एक प्रोजेक्ट है जो लिखा जा रहा है, जिसमें थोड़ा समय लगेगा। मैंने जो फिल्म कंप्लीट हो गई, रिलीज़ होने वाली है, वो जुरासिक वर्ल्ड, वो नेक्स्ट मंथ रिलीज़ हो जाएगी। देन मदारी एक फिल्म है, निशिकांत कामत ने डायरेक्ट किया है। तलवार एक फिल्म है जो मेघना गुलजार ने डायरेक्ट की है और विशाल भारद्वाज ने उसको प्रोड्यूस किया है। और मुझे उम्मीद है इन दोनों फिल्में जो है आपको कुछ दूसरे किस्म का मनोरंजन देंगी। जी बिल्कुल। जज्बा की अगर मैं बात करूँ तो कैसा रहा एक्सपीरियंस ऐश्वर्या राय? ऐश्वर्या मुझे बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस है उनके साथ काम करने का, और फिल्म के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकता बिकॉज अभी फिल्म पूरी नहीं हुई है। फिल्म के बारे में बात करने का मज़ा तब है जबकि आपका पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है और फिर आप उसको एक उसकी महक आ जाती है कि क्या है, किस तरह का है ये, किस तरह की रहेगी फिल्म और कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो जब प्रोसेस में हो तो तब उतना ज़्यादा बात की जाती नहीं है। लोग अक्सर आपके बारे में बातें करते हैं, सोशल नेटवर्किंग मीडिया पे भी लोग बातें करते हैं कि बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी है, कभी छप्पल में आ जाते हैं तो कभी ऐसे नीचे बैठ के बाइट दे देते हैं। हाँ, डाउन टू अर्थ। कोई अर्थ से ऊपर, अगर मेरे को मौका मिले तो मैं अर्थ से ऊपर रहूँ, लेकिन वो मजबूरी है, कुदरत ने ग्रेविटी ऐसी बना रखी है कि आपको ज़मीन पे रहना पड़ता है। अगर बस पड़े तो मैं तो उड़ूँ यार, तो उड़ के जाऊँ सब जगह, एक जगह से ऊपर हो जाए, देन थोड़ा घूम के फिर के। थैंक यू। और ये एक ऐसी फिल्म है जहाँ पर सभी एक्टिंग को एप्रिशिएट किया गया है, वो मिस्टर बच्चन हो, इरफान और आप, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके? आई थिंक हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। आई डोंट थिंक हम किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि लोगों को फिल्म अच्छी लगेगी, कनेक्ट कर पाएंगे, ये सब तो हमको पहले से थोड़ा सा पता था, बट इतना प्यार मिलेगा और इतना मतलब लोग बार बार जा रहे हैं, 2 बार 3 बार 4 बार जा रहे हैं देखने। आई थिंक ये जो अब जो रिएक्शन मिल रहा है, आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस एक्सपेक्टेड। और सच बताऊं तो आई थिंक इट्स गॉन बियॉन्ड अस ऑल्सो। अब जो हो रहा है वो ऑडियंस की तरफ से ही हो रहा है, हमारे हाथ से भी निकल गया है।
and it's the most beautiful feeling because हम इसी के लिए काम करते हैं, and it's almost an emotional, overwhelming experience because I remember Shujit और मैं कल ही मिले थे and we just gave each other such a tight hug because it's really like it's so overwhelming. I can't even explain that feeling. I hope so, and super mom, super daughter, super families, super hit. I think that's what we're here to celebrate. And मैं बहुत खुश हूँ कि आज यहाँ मुझे बहुत सारे super moms को मिलने का मौका मिलेगा, and some performances also, डांस भी करेंगे मेरे लिए, हम सब साथ में भी नाचेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है. Deepika, Piku had an open ending of sorts, given the fact that we don't know whether you and Irfan fall in love, get married or something of that sort. Are you going to ask me if there's going to be a part 2? Wow, see, I knew this question. I don't know. I don't think we've thought that far. I think right now we're all just being in the moment and, sort of, I don't even know what words to use. I think we're all just sort of trying to understand what has happened to this film because it's a phenomenon, if I may say. I don't think it's ever happened before. So I think we're also just, as a team, coming to terms with what is happening to the film. And वो तो मतलब बहुत दूर की बात है. I don't think any of us, I have no idea. I think the fact that we made this film with so much heart and with a lot of purity, and I think that's what is coming across. It was never made with the intention of it making big money. It was never made with the intention of a sequel. What is happening to it is just completely, like I said, I think we're just completely overwhelmed. And I don't think we've even thought that far. Deepika, you personally want Piku sequels to be made? I don't know, yeah. I haven't really thought about it. A sequel is not always, I don't know. That's not really in my control. Just because a sequel doesn't always necessarily do well. I think it's completely in the hands of Shujit and Juhi and what they have in mind, and if they do, I'll be more than happy to be a part of it. But like I said, I don't think any of us have thought that far right now. I think we're all just really sort of trying to absorb this amazing reaction that we've not got, and not just in India. I'm shocked at what has happened to the film internationally. So yeah. I'm really excited. I've met him a couple of times socially, but I think today is the first time that I'll get to properly interact with him. And I'm not let out my secrets. I'm going to try and get him to dance for us. अनुराग कश्यप जैसे एक नया रिमार्क खड़ा कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, क्या कहना चाहेंगे? तो ये कितना अच्छा है बॉलीवुड के लिए? बॉलीवुड के लिए तो बहुत ही अच्छा है. द फैक्ट दैट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म्स आर बीइंग मेड एंड दे कैन ऑल को एग्जिस्ट. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक मैं क्रेडिट ऑडियंस को दूंगी. जैसे मैंने पहले कहा, जो पीकू के साथ हो रहा है, दैट्स कम्प्लीटली द ऑडियंस. हाँ, हम सब ने मेहनत की है. लोग परफॉर्मेंसेस को लेकर तारीफ़ कर रहे हैं, लोग डायरेक्टर को तारीफ़ कर रहे हैं, बट until you get that love and appreciation from the audience, what is it? So I think really जो हमारी फिल्म के साथ जो हो रहा है, it's really, I give all the credit to the audience. Have you seen the trailer and any good wishes for Ranbir? Absolutely. Not just for Ranbir, I think for the entire team. I know that it's a film that's been very, very difficult to execute. And I really wish them all the best. And that's what I was saying earlier. I think it's possible for different kinds of films to coexist. I think that's a very different kind of film. Piku is a very different kind of film. I think it's, it's more universal. It caters to a family audience. So I think the films are very different, and it's very easy for all kinds of films to coexist. Okay, Good evening, everybody, and welcome to the launch of one of 2015's
blockbuster movies. Piku, a round of applause to the team here for many congratulations to all of you. As you all know, the movie has made a business of 120 crore and counting, and it has been not just critically acclaimed, giving us the opportunity, and of course the great talent on stage. Thank you very much. Director of the movie, Shujit Sarkar, to kindly say a few words. Shujit. Hi, good evening everybody, and thank you so much for coming, and I'm really happy because such a overwhelming response that we have got for Piku. And as Vivek said, it's really a special film, and working with some of the few of the top actors from our industry, and I'd like to thank Juhi for writing such a beautiful script, Ronnie and all the team, and I hope this becomes this DVD is also as special as the film was. It's just not, you don't just keep it on the shelf, keep watching it, because there are a lot of things I think that has gone into this film, and I think this film is also a lesson for me as a director and for my writer Juhi, for both of us. So I hope you keep on enjoying as long this film is there on your shelf. Thank you so much, Shujit. Irfan, thank you so much for being here with us today. You're such an integral part of the movie, and we are at its DVD launch now. I'm really thankful that I was part of this film, this movie. It was given a lot of pleasure. It was blessed from the beginning. And in these times when the life of any movie is getting shorter and shorter, I think it's a great privilege for me to bring it again onto DVD. And there are few films which you want to promote from your heart. You feel like you don't want to avoid promoting. These are the films. This is a film which I was especially connected from the beginning, and I had a great vibe to this film. And I think this film has given immense pleasure and happiness. And thank you to all of you Thank you so much. for making it successful. Thank you so much, Irfan. Mr. Bachchan, thank you so much for being here with us. From the movie being critically acclaimed to being so loved by the masses, and to have you here with us do the DVD launch for it. Can we please have you say a few words, sir? बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आज के इस उद्घाटन समारोह में आप लोग यहाँ सब उपस्थित हैं, और धन्यवाद देना चाहिए इस देश की जनता को, जितने भी दर्शक हैं, क्योंकि इतने वर्षों के बाद काम करने के बाद कहीं ना कहीं अब लगता है कि हर दशक में दर्शक जो है वो बदलता रहता है, उसकी चाह, उसकी लगन, उसके देखने का अंदाज, वो सब बदलता रहता है। और हम सब अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि जब हमारी फिल्म रिलीज़ हुई तो दर्शकों का दिमाग, उनकी अकल, उनके देखने की जो चाह थी वो बदल गई, और उन्होंने पीकू को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया। उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, फिल्म जो है बिना लेखक के, बिना डायरेक्टर के, बिना कलाकारों के सफल नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले तो मैं जूही चतुर्वेदी जी को धन्यवाद दूंगा। हमारे इंडस्ट्री में लेखक जो होते हैं उनको इतना ज़्यादा महत्व कभी कभी नहीं मिलता है, लेकिन अगर वो इस तरह की कहानी न लिखती, इस तरह के ख्याल सामने न लाती, तो हम लोग कुछ भी ना कर पाते। उनके संवाद, जिस तरह से उन्होंने स्क्रीन पे लिखा, किस तरह से उन्होंने और सुजीत ने मिल करके इसको बनाया, ये सब बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। और इरफान और दीपिका और जितने भी हमारे सह कलाकार थे हमारे साथ, सब ने मिल करके बहुत ही अच्छा काम किया। ऐसा लगा नहीं हमको, और हम कई बार कह चुके हैं कि हमको लगा नहीं कि एक हम फिल्म में काम कर रहे हैं। हमें लगा कि एक दरअसल एक अपना एक छोटा सा परिवार है, और रोज़ सुबह आकर के मिलते हैं और शाम को एक दूसरे को बतिया करके फिर घर चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मुझे बड़ा सौभाग्य कि आज ये DVD के लॉन्च में मुझे यहाँ बुलाया गया है। जैसे सुजीत कह रहे थे कि आप इस DVD को, और इरफान भी कह रहे थे, इसको आजकल सिनेमा की जो ज़िंदगी है, लाइफ है, वो थोड़ी कम होती जा रही है, और ये DVD एक ऐसा यंत्र हो गया है कि आप कह सकते हैं कि हमने इस फिल्म को अपने घर में रख दिया है। पहले कभी नहीं कर पाते थे ऐसा, तो इसको आप एक अच्छा सौभाग्य मानिए और इस DVD को अपने घर में रखिए। जब कभी भी आपका मन चाहेगा आप इसे देख सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you so much, Mr. Bachchan. Can we please have a dummy copy of the one that needs to be unveiled, DVD copy? Thank you very much.
I'd request Mr. Bachchan along with Sujit, Irfan, Vivek, Shweta. Thank you very much. We're now going to have a short Q&A session, requesting everybody to please stick to questions related to the movie, and you can raise your hands up so we make sure we cover as many questions as possible. Questions? I loved you in this movie. I just wanted to know, is there one lesson that you learned from this movie that you would love to go back and tell yourself when you were growing up? पेट साफ रहना चाहिए। आपने इतनी अच्छी एक्टिंग की, हम आपको सुनना चाहते हैं उस मूवी में, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं एक्चुअली इसीलिए यही सोच के हमने DVD निकाला है कि आप उसको बार बार सुन सकें, बार बार देख सकें इस कहानी। कोई सवाल है तो बताइए, मैं आपका जवाब दूंगा जरूर। Today, I want to ask about your experience working with Irfan, a Hollywood stalwart, and Big V, a Bollywood stalwart, together in a film. Yeah, I mean, obviously, I was really fortunate to have Mr. Bachchan and Irfan in the same film and the same frame, because they both of them are stalwarts of acting. What do you say? So I was really fortunate, and I'm thankful. Yes, you will have some quite interesting deleted scenes. Some of the that we unfortunately could not get into the main film, and also you will have some really fun and beautiful making of the film, which are extra in the DVD. But the most important is, I think, a lot of people after seeing the film had told me that film खत्म नहीं होना चाहिए था, चलते रहना चाहिए था. So इसीलिए we have added a lot of scenes which were cut and deleted, which will be there as a bonus in the DVD. So I had a question. After the making, you had given an interview where you said that during the success party of Piku, you weren't invited by Deepika. So have you sorted out whatever minor differences that happened? वो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कविता पढ़ दी थी, उसको रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, हो जाएगा। बच्चे जी, जैसे पीकू पे आप रोड ट्रिप पे जाते हैं, वैसे ही अभिषेक की फिल्म आई है जिसपे वो भी रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, ऑल इज वेल। क्या आपने ट्रेलर देखा? और आपको बता दो, ऋषि कपूर ने अभिषेक को श्रवण कुमार कहा मॉडल, तो आपका क्या कहना है इस पर? ये फिल्म पीकू की बात है, वो जब उसके लिए बात होगी तब आपसे मुलाकात करेंगे। हम तो होंगे नहीं वहाँ, हमारे सुपुत्र होंगे वहाँ, उनसे आप पूछिएगा। क्या आपने ट्रेलर देखा बच्चन जी? ट्रेलर देखा होगा ना, लेकिन आपने हाँ जी, लेकिन ये अब पीकू की प्रमोशन की बात हो रही है। बच्चन, आपने कहा था कि ऐसे राइटर्स होते हैं जिसकी वजह से मूवी इतनी सक्सेसफुल होती है। आपका ऐसा मानना है कि आपके समय सलीम जावेद जी थे जो इतनी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट लिखते थे, लेकिन आज शायद इतनी वो राइटिंग स्ट्रांग नहीं, कि आप इस पॉइंट पे बिलीव करते हैं कि बॉलीवुड आज शायद राइटिंग में थोड़ा कमज़ोर हो गया? ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, उनका लेखन बहुत अच्छा हो रहा है। हो सकता है कि जो लोग उनके साथ काम करते हैं उनको ज़्यादा जानकारी है, आपको ज़्यादा जानकारी है। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि लेखक को भी एक महत्वपूर्ण जगह मिलनी चाहिए फिल्म में, क्योंकि बिना उनके फिल्म बनती नहीं है। सर, 2 दिन पहले आपने अपने ब्लॉग में जो संडे को फैंस आते हैं आपके घर के बाहर, उनकी सिक्योरिटी पे कुछ लिखा था। क्या कुछ सिक्योरिटी लैब्स आपको लगता है, क्या कुछ चीज़ों की कमी है? और मुंबई पुलिस ने कोई ऐसी बात नहीं है मैडम, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, सामने बच्चे हैं और महिलाएं जो हैं कभी कभी धक्के मक्के में लग जाते हैं, इसलिए मैंने कहा था वहाँ होती है वहाँ पुलिस। सर, मुंबई पुलिस ने उस पर एक नई टीम भी तैयार की है, तो आप मुंबई पुलिस के लिए क्या कहेंगे? उन्होंने एक 3 लेयर 4 लेयर सिक्योरिटी जोन तैयार किया है, उसके लिए एक पैटर्न किया। मुझे मालूम नहीं इसके बारे में। We see a lot of celebrities coming in support of the FTIR protest. So what's your take on this? मुझे मालूम नहीं कि विषय क्या है, तो आई रियली वुडंट नो। सुजीत सर, इतना बड़ा मौका है DVD लॉन्च का, दीपिका क्यों नहीं आई यहाँ पर? She's really busy. She's out of the country, I think, and she's shooting. So the dates could not be, matched, and this date was decided already. So that's why she could not be. But she's anyway there. She's quite excited about the DVD. और दीपिका की जोड़ी बहुत ही पसंद की गई है एज अ फादर डॉटर। तो आपसे जानना चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई, अगर आपको कोई स्क्रिप्ट मिलती है जहाँ पे आपको दीपिका के साथ फिर से काम करना पड़े, क्या आप करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, आप लिख रहे हैं क्या?
लिखो मैं तो बोलिएगा, मैं हाँ काम करने से इमोशन भी ठीक है और मोशन भी ठीक है. Thank you very much, everybody. Thank you very much. We'll do a final round of photo-ops. A final round of photo-ops. हाय, मैं इरफान, सिर्फ फीवर 104 FM पर एंटरटेनमेंट का बाप. हाय चेन्नई, दिस इज इरफान. कैच मी सून इन योर सिटी. कैच मी सून इन योर सिटी ओनली ऑन फीवर 91.9, द ओनली बॉलीवुड स्टेशन इन चेन्नई. हाय चेन्नई. मूवी रिलीज़ होने से पहले तो हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं मूवी कैसी होगी, लेकिन मूवी तो रिलीज़ हो चुकी है और रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे मिले. आपका क्या कहना है? हमें यह बिल्कुल अंदाज़ा था फिल्म रिलीज़ होने के पहले कि ये फिल्म लोगों के मन को छुएगी, लोगों को अलग तरह से एंटरटेन करेगी और लोगों को बहुत अच्छा महसूस कराएगी. ये हमें पहले से पता था, इसलिए हम इंटरव्यूज़ में ये कह रहे थे. मैं तो लगातार ये बात कह रहा था. और फिल्म ने जो है बहुत खुशी दी है. वो चाहे शूटिंग से लेके, शूटिंग के पहले का समय से लेके, पोस्ट से लेके, पब्लिसिटी में हमने बहुत एंजॉय किया इसकी, जो कि अक्सर आप करते नहीं जब फिल्म के बारे में बात करना होता है. और फिर जो इसने सरप्राइज़ किया है, जितना उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा जो है फिल्म मकबूल हुई है, बिजनेस कर रही है. मतलब ये फिल्म जो है शुरू से इस पे किसी का आशीर्वाद था. गॉडफादर्स के पीछे आप किसे मानते हैं? मेरे गॉडफादर? हाँ. मेरा कोई गॉडफादर है नहीं. गॉड को तो मैं ढूंढ रहा हूँ. फादर मेरे, उनकी डेथ हो चुकी है. गॉड अभी तक मिले नहीं है. कभी कभी उनका एहसास होता है, बाकी देखेंगे कब गॉड को पूरी तरह से तो खैर हमारे में इतनी क्षमता भी नहीं है इंसान कि उसको महसूस कर सके. जितनी क़ुर्बत, जितनी करीबी उसकी एहसास हो सके, वो किस्मत की बात है. जी बिल्कुल. जैसे आप जानते हैं कल ही शशि कपूर जी को बाला साहब अवार्ड से नवाजा गया है. आपके लिए उस चीज़ का महत्व क्या है, उस अवार्ड? मेरे लिए शशि साहब का बहुत बड़ा महत्व है. शशि साहब ने हमको बहुत खूबसूरत फिल्में दी हैं. शशि साहब बहुत खूबसूरत इंसान हैं. मेरी उनसे कभी कुछ मुलाकातें हुई थी और वो मुलाकातें मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा. इतने खुले दिल का इंसान, इतना खुश दिल का इंसान बहुत कम होते हैं. और उनका वही चार्म था जो स्क्रीन पे जो है आज तक हमें याद है. बहुत चार्मिंग आदमी थे. आई विश हिम कि मुझे लगता है कि उनको मैं वापस से किसी तरह से घड़ी को उल्टा घुमा के मैं उनको वहीं वैसे ही देख पाऊँ जैसे हमने उनको सिनेमा में देखा था. जी बिल्कुल. आपकी अपकमिंग फिल्म के बारे में हम जानना चाहेंगे. मेरी एक है मदारी जो निशिकांत कामत के साथ है. फिर मेघना गुलजार ने डायरेक्ट की है. एक विशाल भारद्वाज का प्रोडक्शन है, तलवार फिल्म. जुरासिक पार्क आपको, जुरासिक वर्ल्ड आपको नेक्स्ट मंथ देखने को मिल जाएगी. और बाकी फिल्में अभी मैं कर रहा हूँ. जी हम आशा करेंगे आपकी सारी फिल्में ऐसे ही हिट होती हैं. शुक्रिया. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. नाइस टू टॉक टू यू सर.
आई थिंक हम सब बहुत एक्साइटेड हैं तनुवेड्स मनु रिटर्न्स को लेकर. द ट्रेलर वाज एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग. इट्स मेड बाय वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स आनंद सर. बहुत खूबसूरती से कहानियाँ दर्शाते हैं. And I'm really excited about all the praise that Kangana and Maddie and Deepak Dobriyal and all the other actors in the film have been garnering. And I think हम सबके लिए बहुत ख़ास फिल्म होगी. आप भी कोई फिल्म डायरेक्ट करिए जी. तो उसके बारे में कुछ बताइए कि कहाँ तक प्रोजेक्ट हो चुका है. अभी तो डेवलपमेंट स्टेजेस में है. हमारी 4 फिल्में डेवलप हो रही हैं. एंड हम बॉर्न फ्री बहुत एक्साइटेड है. लेकिन आज तनुवेड्स मनु की बात हो रही है तो हमारी फिल्मों की बात नहीं करेंगे. अलग जॉनर्स की हैं. हमारा मकसद है कहानियाँ बनाना, अच्छी कहानियाँ. मैडम को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर कंगना. आई थिंक शी इज़ हैड एन इनक्रेडिबल रन एंड आई थिंक उनको और काफ़ी सारे नॉमिनेशंस मिलने वाली हैं. थैंक यू मैम. और अब रिटर्न आ रही है तो प्रोड्यूसर आप उस फिल्म की कितना प्रेशर फील करते हैं? बिकॉज पहली पिक्चर जो थी तनुवेड्स पर वो काफ़ी हिट रह चुकी है. प्रेशर तो है, नर्वसनेस बहुत है. लोगों ने बहुत पसंद किया है, ऑडियंस ने. और जो रिएक्शन मुझे मिला है बहुत ओवरवेलमिंग है. अब देखें कल पिक्चर रिलीज़ है, कैसे रिएक्शन ऑडियंस का मिलता है. क्योंकि जिन्होंने देखा है, क्रिटिक्स और दोस्तों और बॉलीवुड लोगों ने देखा है और बहुत पसंद किया है. तो नर्वसनेस बढ़ रही है बिकॉज द बॉक्स ऑफिस विल टेल अस एवरीथिंग कैसी पिक्चर है. मुझे तो बहुत पसंद है. एंड अगर तनुवेड्स मनु रिटर्न्स आई है, क्योंकि जो पहले माउंटेड थी, इतनी अच्छी पिक्चर है, इट वॉज माउंटेड इन वन लेवल ना. उससे अच्छी अगर हम लोग ने कोशिश की है उससे बेहतर बनाने के लिए. जो ब्यूटीफुल इमोशंस हैं, जो आपको हंसाएगी और रुलाएगी और हंसा के बाहर आप आ जाए, आप देख के आ जाएंगे. कंगना का जैसे कि 2 किरदार है इस फिल्म में, काफ़ी डिफरेंट स्टाइल है, उनके बारे में क्या कुछ, उनके रोल के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? कंगना का इस बार कंगना 2 है और आप देखेंगे उसने बहुत मेहनत की है दोनों रोलों में, 2 तरह की किरदार निभाने के लिए. तो बहुत आई थिंक एवरीबडी हैज़ लव्ड हर इन दत्तो. सो बट एक्चुअली द स्टोरी इज़ अबाउट तनु एंड मनु. सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रियल स्टोरी. आप किधर कनेक्ट करोगे, you will start connecting somewhere or the other, because in the end you learn something and come, because everything is about adjustment. Marriage is about adjustment. तू और मैं तो होती रहती है, नोक झोंक होती रहती है. तो देखें कि लोगों को कितना पसंद आता है. और एक आपसे रिलेटेड एक सवाल था. हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड में कई सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है एक्टिंग में भी डेब्यू कर रहे हैं. लाइक हमने अभी करण जौहर को देखा है. ऋषिका लूना के बारे में आपसे ऐसी बातें की है, काफ़ी फिट है, उनका ड्रेसिंग से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ब्यूटीफुल भी है. तो हम कभी एक्टिंग में डेब्यू करते हुए देखेंगे? नहीं, अभी सोचा नहीं है. अभी फ़िलहाल मैं चाहूँगी कि और ऐसे अच्छे पिक्चर बनाऊँ. थैंक यू सो मच. और जिस तरह का काम किया है कंगना ने, बाकी सभी सभी टेक्नीशियंस ने, आई थिंक इट्स अ कंप्लीट पैकेज. मैं
मैं इतना खुश, इतना हंसा, इतना रोया किसी फिल्म में नहीं हूँ। यहाँ पे दो कंगना है बेसिकली, दो कंगना है, एक नॉर्मल वाली कंगना और एक हरियाणवी कंगना, तो दोनों में से कौन सी ज़्यादा पसंद है? हरियाणवी भी नॉर्मली होते हैं, ऐसे मत बोले, एक नॉर्मल एक हरियाणवी है। ऑफकोर्स मुझे जो कुसुम सांगवान है जो हमारे हरियाणा की हैं, मैं तो उनके प्यार में हूँ एकदम। वो इतना क्यूट है, उन्होंने कैरेक्टराइजेशन इतना अच्छा किया है उस कैरेक्टर का। बट शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, वो कुछ भी करती हैं वो बहुत ही अच्छा होता है। जी, मुझे तो लगता है कि बहुत सक्सेसफुल होगी और मैं तो यही दुआ करूँगा, यही उम्मीद है मेरी कि सब लोग देखें। और मुझे पूरा यकीन है कि जो लोग देखेंगे इसको बहुत पसंद करेंगे और वो सब लोगों को बोलेंगे जाके देखिए ये फिल्म, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन फिल्म है ये। थैंक यू। मैं बस यही कहूँगी कि सबको ऐसे लगता है कि वी ऑल जस्ट ऑलवेज टॉक नाइस अबाउट फिल्म्स और हम हमेशा अच्छी बातें करते हैं। ख़ासतौर से हम ट्रायल पे आए तो ज़बरदस्ती अच्छी बातें करनी पड़ेंगी क्योंकि सब हमारे दोस्त हैं। लेकिन इस फिल्म के बारे में कोई झूठ नहीं बोल सकता। इट इज़ आउटस्टैंडिंग, इट इज़ गोना बी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स यू सीन। एंटरटेनिंग, फनी, राइटिंग इतनी ज़बरदस्त है। कंगना, मैडी, दीपक, oh my god, I mean it is brilliant, it's just brilliant, so yeah, I can't lie, आपको पता चल रहा है, मैं झूठ नहीं बोल सकती। इतनी अच्छी फिल्म है कि आप सबको जाके देखनी चाहिए with your families because this is what a good film is. एक सक्सेस पार्टी पे हमें और मिलने का मौका मिलेगा। I don't know, that's not what I do, but इसमें मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं। Of course I love Kangana, Krishika is one of my dearest friends और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि right now women are doing so well. It makes me feel good, it makes me feel positive. I don't believe it should be about women orientated films, I believe it should be about good films. लेकिन जब लड़कियों को क्रेडिट मिलता है मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। Thank you guys, thank you. एक्टिंग की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे अच्छी एक्टिंग आपको किसकी है? इरफान खान, बहुत अच्छी। बच्चन साहब? उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और देखिए सुनने में अपने बच्चन उनके जो भट्ट करके कोई फिल्म कर रहे हैं आप? जी, भट्ट कैंप की नहीं है एक्चुअली। विक्रम भट्ट जो है वो राइटर है, फिल्म जो है वो टी सीरीज़ की। कोई स्टार वगैरह? मैं कुछ नहीं बता सकती, मैं कुछ नहीं बता सकती आपको। सलमान खान के बारे में क्या हम बात कर सकते हैं? जो उनके ऊपर इतना वो तो अभी हट चुका है ना, तो मतलब जो टेंशन थी वो तो अभी फ़िलहाल ख़त्म हो चुकी है। चिंतक थे, सबकी दुआएं उनके साथ हैं, आप लोग क्या दे सकते हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ऑब्वियसली जो इंसान को इतने लोग प्यार करते हैं उसको कुछ नहीं हो सकता है। और सोसाइटी के लिए उनका जो ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट, वो काफ़ी कुछ कर रहा है। सो इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। और जो उनके ऊपर जो कन्विक्ट हुए थे और उनके बाद उनके ऊपर जो सेंटेंस का जो लगाया था वो हट चुका है, तो वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा खुशी देती है। वी जस्ट हैप्पी दैट ही इज़ आउट एंड वी होप दैट ही कंटिन्यूज डूइंग द गुड वर्क फॉर द सोसाइटी ही डज इट। पिछले 10 साल में सलमान ने इतने अच्छे काम किए कि मतलब अगर वो एक्सीडेंट को अगर भूल जाए तो फिर उन्हें उसका सरकार को माफ कर देना चाहिए। सी, एक्सीडेंट कोई भी बंदा ना जानबूझ के नहीं करता है। एक्सीडेंट बताया गया था, एक्सीडेंट का मतलब ये होता है जो गलती से हो जाता है। तो आई मीन हाँ, पनिशेबल ऑफेंस है, आपको पनिशमेंट मिलती है वो चीज़ के लिए, पर सामने वो इंसान ने इतना काफ़ी कुछ करा है सोसाइटी के लिए, तो आई थिंक this is something that the government should look after and take it into consideration. That's it. Thank you.